Hello students, welcome to my channel, and today we will discuss the common point of confusion in binomial theorem, that is the middle term. So how can we find the middle term? In the different scenarios, we will see that different middle terms are received. Okay. If the n is even, you will see that only one middle term is there. But if n is odd, you will see that there will be two middle terms. Okay. You can understand in this manner. If n is 4, okay, so total terms would be 5. You can see the previous lecture to see that if 4 is the value of n, then total terms will be 5. Okay. So how can you find the middle term out of them? You can separate the left group by n by 2, that is 4 by 2, and 4 by 2 here. So the remaining term will be the middle term. Okay. 4 by 2 is 2. 2 is the right group and 2 is the left group, and the remaining term is the middle term. So you can say that n by 2 plus 1. Okay. N by 2 plus 1 if n is even. You can see here also if n is even and term should be odd. Okay. If n is even, you will see that the total terms are odd only. Total terms are odd. You can see the previous lecture to see that if n value is even or odd, the total number term remains n plus 1. So, okay. So when n is even, like n is 4, you will see that total terms will be 5. You can see the previous lecture in the description. Link is provided to watch the video. Okay. So how can you find the middle term? N by 2 here and n by 2 here, and the remaining one is the middle element. Okay. You can see the middle term position as there are 4 is the value of n. You will see that n by 2 group is this left group. Okay. And n by 2 terms group is the right group. This is the left group and this is the right group. And this remaining term will be the middle term. Okay. So n by 2 are here and n by 2 terms are here. So n by 2 plus 1 will be the middle term if n is even. So total terms becomes n plus 1. Okay. So n by 2 group is left and n by 2 group is the right of the middle. You will add n by 2 and n by 2, you will receive the n, and this left one is here. So this is the middle term. Okay, that can be the n by 2 plus 1th term. N by 2 plus 1th term is the middle term if n is even. Okay, you can also remember is as n plus 2 by 2th term as the middle term. When you take the LCM, 2 will go to the numerator. So this. You can also remember in one more manner is that if n is even, so even plus 2 divided by 2. This will give me an even integer and divided by 2. Because even is 2, 4, 6, 8, 10, and you will add 2 into it. So it will result into the even integer only. 10 plus 2 is 12. That is also a even. So whenever even is added to even is received. Okay. So what you will see that is an integer will come here. So you can remember this that whenever n is even, you should use the formula of n plus 2. Okay, plus will come, plus 2 will come here. But you will see in the case of the odd, you will see that n plus 1 by 2 will be the middle element and n plus 3 by 2. There n will be odd. Okay, there n will be odd. So you will see that odd plus odd becomes even again, and you will receive an integer as the term value again. Okay, so term should be in integer. Okay, term should be integer. 1, 2, second term, third term, fourth term, fifth term. So term can never be in a non-integer value like 1.5th term or 2.6th term. So that is not a possible way to say about the terms. So always remember whenever n is even, you will see that n plus 2 by 2 is the middlest term. Okay, n plus 2 by 2. You can expand this. Here you will see that if n is equals to 4, so total terms I have left group n by 2 and right group of the n by 2. These both will be added to get the n terms. Now one term is left because total terms are 5. Okay, so two terms 4 by 2 is 2
at the left and two terms at the right and one term is at the middle. So this is the middle term, that is n by 2 plus 1th. Okay. So n by 2 plus 1th term is the middle term. You can also remember as n plus 2 by 2th. Because n is even, so plus 2 will come there. You should remember this every time. This n plus 2 by 2th term will be the middle term. Okay. Not n plus 1 by 2 or n plus 3 by 2, because if n is even, you will add 1. Like n is 4, you will add 1 into it. 5 by 2 becomes a non-integer value. That is 2.5, and that cannot be a term value. So you can remember in this manner that whenever n is even, there will be only one middle term, that will be n by 2 plus 2th टर्म विल बी दी मिडिल टर्म. ठीक है. अगर हमारे पास चार n की वैल्यू है, n की वैल्यू 4 है, तो वी विल हैव फाइव टर्म्स. ओके, 5 टर्म्स. नाउ 4 by 2, दो का ग्रुप लेफ्ट में, दो का ग्रुप राइट में, दिस वन लेफ्ट term is the middle term. So n by 2 plus 1. n by 2 plus 1, taking LCM, n plus 2 by 2 will be the middleth term. So this is n by 2 plus 1th term, or you can say n plus 2 by 2. Okay, in even scenario. But in the odd scenario, what you will see, you will see that the total terms will be n plus 1 here also or not. I will say yes. Total terms will be n plus 1 here also. You can see the previous video, the URL is in the description. You can see that. To watch that, if n is anything, even or odd, you will receive n plus 1 terms. Okay, you can see here that like a plus b whole square becomes a square plus 2ab plus b square. So total terms, if n is 2, the total terms are 1, 2, and 3. So n plus 1 terms are received from the n power expansion. Okay, n plus 1. So if you see here, n is odd, like say n is 3. Okay, so total terms will be 4. Total terms will be 4. N minus 1 by 2 group at the left side and n minus 1 by 2 group at the right side. Now remaining two terms will be the middle terms. Okay, so if I have n equal to 3, you can see here. So I have n minus 1 by 2 group of terms in the left side and n minus 1 by 2 terms at the right side. Okay, these are the left group and the right group. So remaining two will be the middle elements. So whenever n is odd, always remember there will be two middle terms. What will be the value of them? Like n minus 1 by 2 plus 1. Okay, to receive the 2. And here also n minus 2 plus second to receive the 3. Okay, you can see here if four terms are there, n value is 3. Okay, n value should be 3 to receive four terms. Okay, is it obvious? If n is 3, I will receive four terms. If n is 2, I will receive three terms. A plus b ka whole square becomes a square plus b square plus 2ab. Three terms are received when n is 2. So four terms will be received when n is 3. n is 3, so you will receive the four terms. Okay, you will receive the four terms. So what are the middle terms of them? These two will be the middle terms. Okay, so n minus 1 by 2 group at the left side and n minus 1 by 2 group at the right side. Remaining two terms are the middle terms. So you can say that n minus 1 by 2 plus 1 and n minus 1 by 2 plus 2. So when you expand both of them, you will receive n plus 1 by 2 here and n plus 3 by 2. You can also remember in one more important manner. I will give you the simple trick to learn it, that if n is odd number should be added to get the middle term, because odd plus odd becomes even, and when it get divided by the 2, you will receive an integer, and integer should be the terms. Terms can never be in 2.6 term or 3.2 term. No, it is not. 1th term, 2nd term, 3rd term, 4th term, 5th term. Terms are in integer. Terms are in integer. So you want to receive an integer value of the middleth term. So in order to receive the integer value of the middleth term,
इफ n इज ऑड यू विल ऐड 1 और 3 टू गेट द मिडिल टर्म। ठीक है, अगर हमारा n अगर हमारा n इवन है, ओके, तो क्या होगा कि +2 होगा उधर पे मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए, और डिवाइडेड बाय 2, उधर एक ही मिडिल टर्म मिलेगा हमको। बट इफ n इज ऑड हमें दो मिडिल टर्म मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, सेकेंड एंड थर्ड थर्ड दोनों ही मिडिल टर्म बोलेंगे हम उनको। सेकेंड एंड थर्ड दोनों मिडिल टर्म होंगे जब n ऑड है। तो क्या होगा, फॉर्मूले में देखोगे आप, n+1/2 और n+3/2 है। क्यों? क्योंकि ऑड में जब ऑड ऐड होगा और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तभी हमें इंटीजर मिल पाएगा, और n+3/2 करेंगे तभी हमें इंटीजर मिल पाएगा, है ना। अदरवाइज यू विल गेट, लाइक इफ n इज इवन एंड यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, अगर n इवन है लाइक 4 है, फिर हम अप्लाई कर रहे हैं ये फॉर्मूला 4+1/2 और 4+3/2, तो क्या होगा, हमें इधर 2.5 मिलेगा और इधर पे 3.5 मिलेगा। ये टर्म्स की वैल्यू नहीं होती है, या तो वो 2 होती है या 3 होती है। तो हमेशा याद रखो, जब n इवन है तो 4+2/2 टर्म जो होगा वो मिडिल होगा, दैट इज थर्ड टर्म। और अगर n इवन है लाइक 3, सो यू विल गेट 3+1/2 और 3+2/2। n ऑड है अगर, तो ये हो जाएगा 3+1/2 और 3+3/2। दीज टू आर मिडिल टर्म, लाइक 2 एंड थर्ड, दो मिलेंगे। यहाँ पे देखोगे आप तो वही है कि n की वैल्यू 3 है, ओके, n की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा कि हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे। 4 टर्म्स आ जाएंगे तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला n-1/2 ग्रुप लेफ्ट साइड, n-1/2 ग्रुप राइट साइड, रिमेनिंग टू आर दी मिडिल टर्म। सो n-1/2 +1, एक टर्म हमारा ये होगा मिडिल टर्म, और एक टर्म हमारा होगा n-2 प्लस सेकेंड। दिस विल गिव अस, एन की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 1+1, और इधर में रखोगे तो 1+2। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड दोनों ही मिडिल टर्म है। ये सेकेंड एंड थर्ड, वो थर्ड ही मिडिल टर्म। ओके, दो मिडिल टर्म मिलेंगे जब एन क्या होगा, ऑड। ओके, so this is a common point of confusion, that if n is odd, there are two middle terms. If n is even, there is only one. Okay, one. That is n+2/2. Okay. If n is odd, there are two. If n is even, you will get n+2/2 with term. That is the middle term. Okay. This is the important point of confusion in most of the students' mind, and many questions are asked based on them, because this is the confusing concept, and confusing concept are more oftenly asked. ठीक है, जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है उसको ज्यादा पूछा जाता है वो। ठीक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है तो उसमें ऐसा होता है कि आपके नॉलेज का वो चेक हो जाता है कि कितना अच्छा नॉलेज है आपको, हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस, दैट इज रिवील्ड इन द कंफ्यूजिंग टॉपिक्स। ओके, तो ये पता लग जाता है कि यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसा ही है यहाँ पे कि अगर n की वैल्यू है जो वो ऑड है, तो हमेशा n-1/2 +1 करेंगे और n-1/2 +2 करेंगे। एक तरीका ये है कि n3 है तो 4 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, एक ज्यादा टर्म होता है, तो n-1/2 क्या हो गया फिर, 3-1/2। ओके, 3-1/2 हो गया, वो उसका वैल्यू क्या हो गया, 3-1/2 क्या हो गया, 1। और 3-1/2 क्या हो गया, फिर से 1। तो लेफ्ट और राइट ग्रुप में कितने कितने टर्म्स होंगे, 1 1 टर्म्स होंगे। जो जो ये दो बचे हैं वो दोनों टर्म्स मिडिल टर्म्स होंगे, दैट इज n-1/2 प्लस वन टर्म और n-1/2 प्लस सेकेंड टर्म। ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैव रोट, मैंने यही लिखा है अंदर पे, n-1/2 प्लस वन टर्म और n-1/2 प्लस सेकेंड। तो ये दोनों टर्म्स हमारे मिडिल टर्म्स होंगे इसमें। और जब n इवन हो जाता है पावर का, तो क्या होता है, एन इवन है, लेट से 4 है, तो हमारे पास 5 टर्म्स मिलेंगे, एक ज्यादा टर्म मिलता है। तो एक लेफ्ट ग्रुप बनेगा n/2 का और एक राइट ग्रुप बनेगा n/2 का। ठीक है, तो लेट से इट्स 4, 4/2, 2 का
एक लेफ्ट ग्रुप बना टू टर्म्स का और एक टू टर्म्स का राइट ग्रुप बचा, तो बचा एक। ओके, यही है मिडिल टर्म, दैट इज n/2 + 1। तो ऐसे याद कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है इसको याद करने का। कैसा है दूसरा तरीका याद करने का, बताओ। दूसरा तरीका ये है कि इधर से जब देखोगे आप, तो n+1/2 और n+3/2 ये दोनों टर्म मिडिल हो गए। और इधर से देखोगे तो n+2/2 हो जाएगा। तो ये चीज याद रखो कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर ही आनी चाहिए, क्योंकि टर्म्स इंटीजर में होते हैं। टर्म शुड बी एन इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू के लिए एन इंटीजर में ही होना चाहिए भाई। ऊपर का न्यूमरेटर जब इंटीजर होगा तो नीचे का भी इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर तो होना चाहिए n। पर एक और चीज है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो ऊपर भी इवन इंटीजर आएगा तभी वो डिविजिबल होगा, नहीं तो हमें डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी, लाइक 5/2 2.5 मिल जाएगा। तो जब भी n की वैल्यू क्या होगी, और यू विल सी दैट 1 और 3 ऐड होगा, तभी हमें ऊपर इवन इंटीजर मिलेगा, और नीचे 2 है तो डिवाइड करोगे तो you will get and n is 3, 3+1/2 और 3+3/2। तो यहाँ देखोगे कि सेकंड और थर्ड टर्म मिलेगा, क्योंकि इंटीजर ही चाहिए। टर्म हमेशा इंटीजर में होता है। और इधर पे देखोगे कि n इवन है तो +2 ऐड होगा। ओके, लाइक 4+2/2। तो यहाँ देखोगे थर्ड टर्म मिडिल टर्म हो गया। तो जब इवन n होगा तो 2 ऐड करना है, इवन ही वैल्यू ऐड करना है, तभी हमें उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें एक इंटीजर मिल पाएगा, क्योंकि इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो हमें ऑड इंटीजर मिल जाता है। और उसको डिवाइड करोगे 2 से तो हमें इंटीजर नहीं मिलेगा, तो टर्म वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रही है, तो ये नहीं होता है। टर्म्स की वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही होती है। टर्म्स की वैल्यू शुड ऑलवेज बी इन इंटीजर। ओके, टर्म्स वैल्यू शुड ऑलवेज बी इंटीजर। सो एन अगर ऑड है तो 1 और 3 ऐड होगा, और डिवाइडेड बाय 2 दीज टू आर द मिडिल टर्म। एन इवन है तो n+2/2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी द मिडिल टर्म। ओके, remember in this, n is even, add 2 divided by 2, that is the middle term. But n is odd, add 1 and divide by 2 in the end, and add 3 and divide by the 2. So these two will be the middle term when n is odd. अगर n इवन है तो क्या करना है, +2 कर दो और डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द मिडिल टर्म। और n ऑड है अगर, तो हमें क्या करना होगा, ऑड ही टर्म ऐड करना होगा, तभी वो डिवाइड होगा 2 से और हमें इंटीजर मिलेगा, है ना। तो जो टर्म वैल्यू होती है वो तो इंटीजर में ही होती है, तो जब n ऑड होता है तो 1 और 3 ऐड होता है, ऑड ऑड मिलके दोनों हमें इवन दे देते हैं, और इवन इवन मिलके भी हमें इवन ही दे देते हैं। तो हमें या तो ऑड ऑड चलेगा या तो इवन इवन चलेगा। तो जब भी n इवन है तो +2 होगा तो इवन ही ऐड होगा, डिवाइडेड बाय 2। ओके, और अगर n ऑड है तो क्या होगा, +1 +3, इवन इवन ऐड हो, ये इवन बन गए, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिल जाएगा इधर पे। ओके, दिस इज फॉर दी ऑड, क्योंकि ऑड और ऑड ऐड होके हमें इवन दे देंगे, तो ऑड ही ऐड होगा उसमें, 1 और 3 दोनों ऑड है तो ऑड ही होंगे ऐड। ओके, अब टिल टिल हियर आई थिंक एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल। एक और कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है कि जो हम जब टर्म निकालते हैं, ये तो हमें मिडिल टर्म हो गए, ठीक है। लेट्स से इफ n इज 4 द मिडिल टर्म इज 3। ओके, n इज 4 द मिडिल टर्म इज द 3, तो टोटल टर्म्स आर 5। n is 4, total terms are 5, n/2 here, n/2 here, so n/2 + 1 will be the middle term। ऐसे भी पता कर सकते हो, यहाँ से दिख भी रहा है कि मिडिल फिंगर बोलते हैं इसको, तो ये मिडिल टर्म हो गया। ओके, तो यू विल सी दैट 4+2/2 फॉर्मूले से भी देख लिया, n+2/2, so you will get 4+2/2, what you will get, 6/2। In this manner you will get 3 from here also। Okay, now what you will see there, to find the term, what you will do, to find the third term, what you do at the expansion, you minus by the 1, never write r here। Okay,
we write r minus 1 here, r minus 1 and r minus 1 here. Never write the r only. This is the second point of confusion. ये confusion होती है हमेशा कि सर r ही राइट करना देगा। मेरे को मिल गया, चलो थर्ड टर्म मेरा मिडिल टर्म है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए मैं एन सी थ्री लिख दूं इधर, और ए टू द पावर एन माइनस थ्री लिख दूं, और एक्स की पावर थ्री लिख दूं। नहीं, ये दिस इज द रॉन्ग वे। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज द रॉन्ग वे। यहाँ भी दिस इज द रॉन्ग वे। ओके, ऐसा नहीं होता। बट अगर यहाँ देखोगे आप, मैंने जो लेफ्ट साइड में देखोगे कि ए टू द पावर एक्स, एट प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपांसन है, उसमें अगर मैं मिडिल टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो क्या हुआ, एन की वैल्यू अगर क्या है, थ्री है, एन की वैल्यू थ्री है, ऑड है तो क्या करेंगे, ऑड है तो क्या करेंगे, ऑड ही ऐड कर देंगे, 1/2, और एक और ऑड वैल्यू ऐड कर देंगे 3/2, तो ये दोनों हमें क्या मिल जाएंगे, मिडिल टर्म्स। 4/2 इज टू सेकेंड, और थर्ड हमारा मिडिल टर्म हो गया। अब ये वैल्यू जो है हम इधर पुट करेंगे एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस होल आर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर आर माइनस वन। तो आर को टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो यहाँ भी एन माइनस वन, और इधर एक्स माइनस वन। यहाँ देखो ये वन हो जाएगा तो एन माइनस वन हो गया, इधर भी वन हो जाएगा, इधर भी वन हो जाएगा, तो एन माइनस वन आ जाएगा इधर, और इधर भी वन आ जाएगा, एंड हियर ऑल्सो एन सी वन। So in this way, you will receive the second middle term. In second middle term, observe 1, 1, 1 is everywhere. And in the third, you will see that 2, 2 is everywhere. This is a common point of confusion. 3 नहीं आएगा, NC3 नहीं आएगा, A to the power n minus 3 नहीं आएगा, और X to the power 3 नहीं आएगा. 2 आएगा for the third term. We have also covered this in the previous lecture. You can see that this is the common point of confusion. Always remember when asked about the which term is the middle term. कौन सी term middle है, कौन सी टर्म मिडिल है, तो क्या बोलोगे, कौन सी टर्म मिडिल है। अगर एन की वैल्यू थ्री है तो ऑड ही ऐड करेंगे, ऑड में डिवाइडेड बाय टू, और ऑड ही ऐड करेंगे ऑड में डिवाइडेड बाय टू, टू गेट ए इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म क्या होगा, मिडिल। सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर मिडिल, but when you need to find the terms value, when you need to find the terms value, what you will do, when you need to find the terms value, you will minus by 1. Find the second term value, nc2 minus 1, n minus whole of 2 minus 1, and x to the power 2 minus 1. ऐसे ही जब तीन टर्म थ्री फाइंड करेंगे, क्योंकि n इक्वल टू थ्री है, तो हमें कितने मिडिल टर्म मिलेंगे, दो मिडिल टर्म मिलेंगे, मिडिल टर्म वन एंड मिडिल टर्म टू। और जब n इवन होता है तो हमें कितने मिडिल टर्म मिलते हैं, एक ही मिडिल टर्म मिलता है। और इसको याद करने का क्या तरीका है कि n प्लस इवन ही ऐड कर दो इवन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीजर वैल्यू, तभी तो मिल पाएगी। तो हमें मिडिल टर्म की वैल्यू मिल गई सेकेंड, n इज टू। ओके, जैसे जैसे ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड मिडिल टर्म होगा, ये मिडिल टर्म हो जाता है। एन की वैल्यू टू है तो मिडिल टर्म टू ए बी हो गया। ओके, ये तो पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो जो टू ए बी हो गया वो मिडिल टर्म कहलाएगा इसका, क्योंकि एन इवन है इधर पे। ये किसका एक्सपांसन होता है, ए प्लस बी स्क्वायर का, और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टू है। एन की वैल्यू कितनी है, टू है, और इसका एक्सपांसन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा मिडिल टर्म। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस टू बाई टू, तभी तो हमें क्या इंटीजर वैल्यू मिलेगी, इवन में इवन ही ऐड करोगे तभी तो हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज हमें नॉन इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, तो कैसे टर्म फाइंड करेंगे हम। जबकि एन इक्वल टू थ्री है, जैसे एन इक्वल टू ए प्लस बी क्यूब क्या होता है पता है आपको, ये तो आइडेंटिटी पड़ी हुई है ना, ये होता है ना। तो इसके मिडिल टर्म कैसे बताएंगे, इसके मिडिल टर्म दो हो जाएंगे, इधर एन की वैल्यू कितनी है, तीन है, और टर्म्स कितने हैं, चार हैं, तो मिडिल टर्म दो होंगे, ये और ये। हमेशा एन जब ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म्स होंगे, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, दोनों ही मिडिल टर्म है। तो इसको फाइंड करने का तरीका है, ऑड में ऑड ही ऐड करते हैं ना, थ्री प्लस वन बाई टू और थ्री प्लस थ्री बाई टू, ये दोनों मिडिल टर्म हो गए। तो कौन कौन से मिडिल टर्म है, टू एंड थर्ड, तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये दोनों क्या हो गए, मिडिल टर्म्स।
ओके, नेचुरली भी देख के पता चल रहा है। बट अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ आउट ऑफ एन इज इक्वल्स टू 100, तो उस सिनेरियो में हम पूरा ऐसा लिख नहीं सकते हैं, तो यू विल यूज द फॉर्मूला इन दैट सिनेरियो। यहाँ तो मैं साफ समझ में आ रहा है कि सेकंड और थर्ड टर्म मिडिल है। बट इफ द क्वेश्चन इज फॉर द एन वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 100 और 200 और लैख और 2 लाख और एनीथिंग, इन दो सिनेरियो यू विल यूज द फॉर्मूला। ओके, तब मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूला यूज करेंगे ना। कैसे भी यूज करेंगे कि एन अगर इवन है तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, n+2/2। और एन ऑड है तो ये, जब एन की वैल्यू बहुत सारी है हमारे पास, तब ये यूज करना चाहिए अपन को फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसे लिखने तो नहीं बैठ जाएंगे बहुत सारा, पूरे कॉपी भर जाएगी हमारी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, n=ऑड n+1/2 और n+3/2। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे हम। और ये हमारा इसमें आ जाएगा टी में। टी में हम ये वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू n+1/2 तो ये हमें टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, NCR(a⁻n−r−1) इंटू x⁻r। तो ऐसे में टर्म मिल जाएगी वैल्यू की। ओके, वी विल कवर इट more in the next lectures. Okay, we will solve more problems about it. Okay, you can check the description for solving the more problems of them. But until then, let's solve four problems that can be asked in the JEE Advanced. Okay, using this concept only. ये कॉन्सेप्ट का यूज करके जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो देखेंगे अभी, है ना। फॉर द बाइनोमियल एक्सप्रेशन a+x⁻n, व्हाट कैन बी द मिडिल टर्म पोजीशन। व्हाट कैन बी द मिडिल टर्म पोजीशन, आप कहोगे सर n है तो मैं बोलूंगा n+2/2। आपने पहले बताया ये चीज, ये मिडिल टर्म हो जाएगा, तो मैं ए करेक्ट कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आई विल से नो, बिकॉज एन इज नॉट स्पेसिफाइड। एन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो क्या करोगे ऑड केस के लिए, ये भी तो हो सकता है और ये वाला भी तो हो सकता है। ये ऑड में ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों ऑड के भी तो हैं। n+1/2 टर्म और n+1/+1 नेक्स्ट टर्म, तो ये दोनों भी तो सही होंगे। और डी वाला कह रहा है A B C तीनों करेक्ट हैं, तो ये भी तो सही है, तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ फॉर द बाइनोमियल एक्सपांशन, व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ द मिडिल टर्म। वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम, TR करके वैल्यूज निकालते हैं। ओके, तो इधर R की जगह क्या लिखा हुआ है, n+2/2 और n+1/2 और n+1/2+1 लिखा है R की जगह। ओके, हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं एक्सपांशन में, TR से। ये वैल्यूज होती है RH टर्म की। RH टर्म मीन्स एनी टर्म, वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। बट R की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए, तभी तो मिडिल टर्म्स की वैल्यू कहलाएगी वो। ओके, तो Tn+2/2 ये होता है क्या मिडिल टर्म, होता है। और इवन में तो होता है, क्योंकि इवन इवन ऐड होके डिवाइडेड बाय इवन यू विल गेट दी इंटीजर वैल्यू, और n+2 ही होता है उसमें तो, है ना। इवन इंटीजर्स भी काफी सारे होते हैं, बट 2 ही यूज करना है, n+2/2। और 1 और 3 यूज करना है ऑड में। ओके, दो इंटीजर यूज करना है, तो ये सही हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू भी तो, अब मैं आगे बढ़ गया हूँगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं रुको रुको, ये नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें एन स्पेसिफाई नहीं है। एन स्पेसिफाई नहीं है तो ये दोनों भी तो मिडिल टर्म्स हो सकते हैं, तो बी और सी भी सही हो जाएगा। और एक थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन में है A B C आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, मतलब तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ABC तो करेक्ट है, इसमें चार ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बट फॉर द बाइनोमियल एक्सपांशन इफ एन इज ऑड, अब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि एन ऑड है। एन ऑड है तो क्या होगा, कितने मिडिल टर्म्स आएंगे, दो मिडिल टर्म्स आएंगे ना। एन ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स आएंगे, एन ऑड है तो चार टर्म्स होंगे, और ये दोनों मिडिल टर्म्स हो जाएंगे, तो दो मिडिल टर्म्स आएंगे ना। ऑड में टर्म्स इवन होंगी और मिडिल टर्म्स दो होंगे। ओके, दो मिडिल टर्म्स आएंगे, दो मिडिल टर्म्स फॉर दी ऑड, दो मिडिल टर्म्स फॉर दी ऑड, और वन मिडिल टर्म्स फॉर दी इवन, लाइक फोर। n value is 4 that is even, n value is 4 that is even, तो टोटल टर्म्स 5 होंगे, टोटल टर्म्स 5 होंगे, तो ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया एक। तो ये बचा हुआ क्या है, मिडिल टर्म है, और मिडिल फिंगर भी इसी को बोलते हैं, मिडिल। ओके, तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दैट इज नॉट
माई बिहेवियर टुवर्ड्स यू। बट क्या करना है इसमें कि बच्चों, n+2/2 टर्म होगी क्या मिडिल टर्म? नहीं होगी, क्योंकि n ऑड है। और n+1/2 टर्म, ये होगी मिडिल टर्म, क्योंकि n ऑड है, और n+1/2+1, ये दोनों सही हो जाएंगे। Now we will see the fourth question. So we have done mistake that डी ऑप्शन हमने पढ़ा नहीं। डी ऑप्शन में क्या है, बी एंड सी भी तो है, तो ये भी सही होगा। एडवांस में यही ट्रिक्स होंगी बेटा। एडवांस में देर विल बी ट्रिक्स लाइक दिस ओनली। यू विल सी दैट you need to read every option. Okay, you can't leave the question after reading two options or three options. You read every option, every possible option. ठीक है? If you see the D option, B and C is there, so you will tick that also. In mains, what you do that tick one option and move ahead. That is not the scenario in advance. मेंस में क्या होता है, एक ऑप्शन करेक्ट किया और अगले आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट होते हैं ना। ओके, so for the binomial expansion, if n is even, what can be the position of the middle term? n is even, even है सर, तो क्या होगा, even है तो क्या होगा, n+2/2 टर्म हो जाएगा। इवन में इवन ऐड करेंगे तभी तो इवन मिलेगा, तभी तो वो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। ऐसे याद कर सकते हैं ना, मैंने पहले भी बोला है। इवन के केस में ऐसे याद करो, n+2/2। और ऑड के केस में ऑड ही ऐड करो, n+1 + n+3/2/2। क्योंकि मिडिल फाइंड करना है तो डिवाइड करोगे ना 2 से। ओके, ऐसे याद करो। तो कौन सा आंसर सही होगा, A1। अभी भी आगे नहीं बढ़ना है भाई, बी ऑप्शन भी देखना है। क्या हो सकता है ये सही, n+1/2 टर्म, ये तो ऑड का होता है सर। और n+1/2+1, ये तो ऑड का होता है सर, तो ये दोनों नहीं है सही। और बी एंड सी भी तो फिर नहीं होंगे सही। बट इसको अगर दूसरे तरीके से लिख के ऑप्शन में दे देते, ई लेट से n+ दिस वे, इन दिस वे, अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये भी सही हो जाता कि नहीं होता, बताओ भाई। एलसीएम ले लो इसका। ऑप्शंस को भी सॉल्व करना होता है एडवांस में। ओके, यू विल सी दैट n/2+2 वही चीज बन गई, तो ये भी सही हो गया ये। ओके, n/2+1 इज सेम एज n+2/2, एलसीएम ले लिया, बस नहीं फर्क है। ओके, नाउ यू विल सी द क्वेश्चन फिफ्थ, फॉर द बाइनोमियल एक्सपांशन व्हाट कैन बी द मिडिल टर्म वैल्यू। व्हाट कैन बी द मिडिल टर्म वैल्यू, वैल्यू कैसे लिखते हैं, टी आर करके है ना, ये वैल्यूज हैं, टी एम ऐसे ही लिखते हैं। पर एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिडिल टर्म के लिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एम? ये हो सकती है n+2/2, या सर हो सकती है किसके लिए, ये इवन है तो यहाँ भी इवन, जब n होगा तब के लिए हो सकती है। और यहाँ ऑड है, 1 और 3, इसको एक्सपांड करोगे तो हो जाएगा n+3/2। ओके, n+3/2, टू का एलसीएम लोगे तो n+1 + 2/2 हो जाएगा, तो n+3/2 हो जाएगा। तो ये m की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये मिडिल टर्म बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये m की वैल्यू इधर पुट करोगे इस टर्म में, तो बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। m की वैल्यू n+2/2 पुट करोगे तो बन जाएगी क्या, हाँ, m-1 लिखा हुआ है, इधर भी m-1, इधर भी m-1। ठीक है, ये यहाँ तीन पोजीशन पे m-1 चेक करना होता है। इधर भी m-1, और इधर n माइनस दिस m-1, और इधर m-1 ओनली। है क्या, हाँ, तो ये सही हो गया। ये पिछले लेक्चर में भी देखा था, m-1 होता है, m नहीं होता। देयर इज नो m देयर, इस m-1। कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ये होता है कि हम m ही रख देते हैं, एम नहीं रखना है, m-1 रखना है। ओके, सेकेंड ऑप्शन में देखोगे फिर से एन सी m-1 है, m-1 है, और उधर भी m, पर इधर m की वैल्यू क्या रख दी, n+1/2 रख दी। तो हो सकती है कि n+1/2, ऑड रखा है, वन, वन ऑड है, तो ये होता है ऑड, ऑड एन के लिए होता है ये। जब एन क्या होता है, ऑड होता है, तो ये वैल्यू होती है मिडिल टर्म की। और इधर पे n+3 है, इधर भी ऑड है 3, तो ये भी ऑड जब एन होता है तब के लिए एप्लीकेबल एप्लीकेबल होता है। और दोनों ही होते हैं एप्लीकेबल, ठीक है, n+1/2 और n+3/2, तो ये दोनों भी सही है। ये ऑड के लिए हैं ये दोनों भाई, ये ऑड के लिए हैं और ये इवन के लिए हैं। इवन में एक ही होता है बस।
ऑड में ये दोनों आएंगे, बी और सी। क्योंकि क्वेश्चन में इट इज नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एन ऑड है या इवन है, तो ये तीनों ही सही होंगे। और बी ऑप्शन कह रहा है ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन भी। और उसके बाद ये बोला टी एम इज इक्वल टू एन सी एम ए एन माइनस एम एम। आप बोलोगे सर ये तो एम आ गया, M-1 होना चाहिए ना टी एम में। तो मैं बोलूंगा हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं, आप तो हमेशा ही सही होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये गलत हो जाएगा भाई, दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग, NCM लिखा हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। these थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग। पर n की वैल्यू देखोगे तो ये सही दिख रही है, तो n+2/2, इधर n ये 2 इवन है, तो ये इवन n के लिए है। और इधर इधर देखोगे तो n ये +1 ऑड में है, तो ये ऑड n के लिए होगा। और ये यहाँ भी देखोगे m एक्सपांड करके n+3/2 हो जाएगा, ये 3 ऑड है, तो ये ऑड n के लिए ये दोनों सही हो जाते, बट इधर M-1 होना चाहिए था इधर, सब जगह M-1 होना था इधर। M-1, ये इसकी जगह भी M-1, इधर भी M-1, इधर भी M-1, और इधर भी M-1 होना था, सब जगह N-1 होना था, यहाँ भी और यहाँ भी। तब ये तीन ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। हमने जो आज पढ़ा उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस किए मिडिल टर्म्स के, बेसिकली जो कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब एन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज, या तो n+2/2 हो जाएगा मिडिल, या n+1/2 हो जाएगा, या n+3/2 हो जाएगा, ये तीनों हो जाते हैं। पर जब n को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि n ऑड होगा भाई, तो दो ही सिनेरियो बचते हैं फिर, n+1/2, ये इवन वाला चला जाएगा n+2/2, और n+3/2, ये दोनों मिडिल टर्म होते हैं। और जब n इवन हो जाता है तो क्या होता है कि n+2/2 टर्म ही मिडिल टर्म कहलाता है, ओनली वन और द इवन। यू कैन रिमेम्बर एज a² + 2ab + b²। जब n इवन है मतलब a+b² का एक्सपांशन है, इधर n 2 है, ये इवन है, तो एक ही मिडिल टर्म मिलता है। whereas if you see that n is odd, like a+b का होल क्यूब है, तो a³ +3a² b +3b² a +b³ होता है, तो ये दोनों ही मिडिल होते हैं, 3a² b +3b²a। तो जब n हो ऑड होता है तो दो मिडिल टर्म मिलते हैं। अब n को इधर पुट करो 3 में, तो 3+1/2 बिकम्स 2, और 3+3/2 बिकम्स 3। तो सेकंड एंड थर्ड टर्म यहाँ भी गिनोगे तो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म, दूसरे और तीसरे टर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने एक ऐसा तरीका देखा कि जब एन ऑड होता है तो ऑड ही वैल्यू ऐड होती है, ये तरीका होता है याद करने का। एन ऑड है तो ऑड ही वैल्यू 1 ऐड होगा और 3 ऐड होगा, और डिवाइडेड बाय 2 होगा। और जब एन इवन होगा तो इवन वैल्यू ही ऐड होगी, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएंगे। दूसरा तरीका हमने फिंगर से भी देखा है कि भाई अगर हमारे पास एन की वैल्यू 4 है तो 5 टर्म हो जाएंगे। यू विल सी दैट n/2 and n/2 will go there. Remaining one is the middle term. Now to the middle finger that I will show you never. Okay, I will show you never. Okay, because n/2 and n/2 are the two groups set apart, and remaining one is the middle term. Okay, middle term. So that can be find as n/2 here, n/2 there, and n/2 + 1 as the मिडिल टर्म इन दी सिनेरियो ऑफ इवन। यहाँ n 4 है, टोटल टर्म्स 5 हो गए, n इवन है तो n 4 है, टोटल टर्म्स 5 हो गए, n/2 का ग्रुप लेफ्ट में, n/2 का ग्रुप राइट में, तो 2 टर्म्स का ग्रुप लेफ्ट में, 2 टर्म्स का ग्रुप राइट में, तो ये 2 का ग्रुप इधर लेफ्ट में बन जाएगा, 2 का ग्रुप राइट में बन जाएगा। ये कैसे आया, n/2 से, n/2 से, और ये भी n/2 से। तो जो सेंटर में बचा वही है n/2 + 1 टर्म, वही है मिडिल टर्म, विच इज 2n/2
this is 2, this is 2, and 2 plus 1, this is the third term. Third term is the middle term, and third finger is the middle finger. Okay. So that is all. And if n is odd, like 3, so total terms becomes 4. We can also learn in this manner. Okay. 4. N minus 1. What is n minus 1? 2. What is n minus 1? It is 2. एंड n माइनस वन बाय टू का एक ग्रुप इधर पे और n माइनस वन बाय टू का एक ग्रुप यहाँ पे, लाइक n माइनस वन बाय टू इज वॉट 1. 1 का ग्रुप एक इधर पे, 1 का ग्रुप एक इधर पे, ये दोनों गए, तो जो बचे हुए दो हैं n माइनस वन बाय टू प्लस वन और n माइनस वन बाय टू प्लस टू. दीज बोथ आर दी मिडिल एलिमेंट्स. दो मिडिल एलिमेंट्स मिलते हैं हमें. ये आएगा, इसको इधर पे दो मिडिल एलिमेंट्स आते हैं ये बीच में. तो n माइनस वन बाय टू प्लस वन इज n प्लस वन बाय टू, और एक ये आएगा n प्लस थ्री बाय टू, है ना. यही है. ऑड में ऑड ऐड करोगे 1 और 3 डिवाइडेड बाय 2 फॉर द मिडिल एलिमेंट, और इवन में इवन ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2. बट एक चीज याद रखना, हमेशा इवन में सिर्फ एक मिलेगा और ऑड में दो मिलेंगे. ओके. ऑड में दो मिलेंगे. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² में दो मिलेंगे, और a प्लस बी स्क्वायर में सिर्फ एक मिलेगा. ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा. ओके. यू कैन ऑल्सो remember the fingers. So please keep watching the videos, because our agenda is to, I have some agendas. Okay, I will cover JEE mains plus advanced PYQs. Okay, I will cover the PYQs that are asked, because I have also cleared JEE, so I know what kind of questions are there and what kinds of important concepts are asked. So I will cover the important concepts as well and important questions. Okay, and I also know what are the general silly things that we miss. So I will always suggest you some guidance. Okay, I will suggest the guidance for the high score. Okay, this is the agenda. These are the agenda of my lectures. Okay, so I will guide you for the important topics, important concepts, important questions, and PYQ. As I have cleared the JE, I know what kind of important discipline and what kind of practice do you require. Okay, so I will guide you in that, and I will also give you the study questions, short notes. Okay, I will share them in the description. You can watch them, or you, and also you can learn from them. Short notes, and I can also share the test papers. Okay, so these are the agenda of my channel. So please subscribe it and try to learn from me. As I also experienced, I have cleared JEE. I received 98.3 percentile in it, and I am graduated from NIT Bhopal. Okay, I have also passed the JEE Advance also. Okay, so I can give you the guidance that you need for clearing the JEE Main as well as the Advanced. So keep watching the videos, keep following the PYQs, important concept and important question that I generally post regularly. Okay, I will suggest you the tricks that are needed and how to be more accurate, and how to practice and what kind of study you will require. So keep watching the videos and solving the questions. Thank you so much.